Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss the second part of the first chapter of the guidance. In my previous lecture, we have discussed about the homeostasis, and in this lecture, we will discuss the control mechanism, the control system of the body. So basically, our control system of the body is divided into two parts: feedback mechanism and feed forward mechanism. And feedback mechanism further divided into two parts: negative feedback mechanism and positive feedback mechanism. Okay, so control system is divided into two parts: feedback mechanism and feed forward mechanism. And feedback mechanism further divided into two parts: negative feedback mechanism and positive feedback mechanism. Okay, so what is the difference between negative feedback mechanism and positive feedback mechanism? So in negative feedback mechanism, it will oppose the effect of that stimulus which causes the disturbance in the normal functioning of the body. Okay, it will oppose the effect of that stimulus which causes disturbance in the constant internal environment of the body. Internal environment of the body. Okay, negative feedback mechanism will oppose the effect of that stimulus which causes disturbance in the constant internal environment of the body. The term internal environment we have discussed in detail in my previous lecture. For example, there is an increase of carbon dioxide in the internal environment of the body, then the body will respond in such a way to decrease that carbon dioxide level in the internal environment. So it will reduce the carbon dioxide level in the internal environment by hyperventilation. देखें, बहुत ही सिंपल है। जब कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो हमारा बॉडी के जो कॉन्शियस इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब करेगा, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसके अपोज जाएगा। देखें, अब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही थी, तो हमारा जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये हमारी लंग्स की हाइपरवेंटिलेशन कराएगा। जितनी हवा जो है ज़्यादा पास करेंगे, पास आउट करेंगे, उतना जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे जिस्म से एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में फर्दर एक टर्म है गेन। ठीक है, गेन। ठीक है, गेन दरअसल करेक्शन और एरर। So what is gain? Gain is the degree of effectiveness through which our control system maintain the constant level of our body. For example, when our blood pressure, when we infuse
2 liter of blood in any body without the presence of baroreceptor. Because these baroreceptor, if in the presence of these baroreceptor, they will reduce the blood pressure in the presence of more 2 liter of the blood, and without the absence of the baroreceptor, we induce in a person 2 liter of the blood, and the blood pressure of a person rises from 100 mm of Hg to 175 mm of Hg. ठीक है, मतलब कि जब बायोरिसेप्टर किसी पर्सन में फंक्शन कंडीशन में नहीं थे तो हमने उसके अंदर 2 लीटर जो है ब्लड इंड्यूस किया, तो उसके अंदर में उसका ब्लड प्रेशर जो है 100 से 175 mm ऑफ Hg तक इंक्रीज कर गया without the presence of baroreceptor. And in the presence of functional baroreceptor, जब हम किसी बॉडी में 2 लीटर ब्लड जो है इंड्यूस करते हैं तो ये 100 से 125 mm ऑफ Hg तक इंक्रीज हुआ। ठीक है, बायोरिसेप्टर की मौजूदगी में अगर जब हमने 2 लीटर ब्लड किसी बॉडी में इंड्यूस किया तो ये 100 से 125 तक जो है इंक्रीज किया इसने। देखें, without absence of baroreceptor, blood pressure increases up to 175 mm of Hg, and in the presence of baroreceptor, the blood pressure increases up to 125 mm of Hg. ओके, देखें कितना ब्लड जो है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, -50 mm of Hg. In the presence of baroreceptor, there is a difference of 50 mm of Hg. मतलब बायोरिसेप्टर की मौजूदगी में 50 mm of Hg की जो है करेक्शन हो गई। ठीक है, करेक्शन कितनी हुई, 50 mm of Hg, और बाकी जो है कितना पीछे बच गया, 100 से 125 तक तो फिर भी इंक्रीज हुआ ना, बायोरिसेप्टर की मौजूदगी में फिर भी 100 से 125 तक तो फिर भी गया। इसको हम कहते हैं एरर। एरर कितना है जी, 25। ओके, तो गेन कितना हुआ टोटल, इसका जो गेन है वो है 2। ओके, ये बहुत ही सिंपल है। देखें, बायोरिसेप्टर की जब ये फंक्शनल कंडीशन में नहीं था या मौजूद नहीं था, उस वक्त जब हमने 2 लीटर ब्लड इंजेक्ट किया तो ये 100 से 175 तक इंक्रीज किया, और इसकी मौजूदगी में जब हमने 2 लीटर ब्लड इंजेक्ट किया तो ये 100 से 125 mm Hg तक जो है इंक्रीज हुआ। देखें कितना ये करेक्ट हुआ, इसमें करेक्शन कितनी आई है, 175 से 125 तक 50 mm ऑफ Hg की जो है करेक्शन आई है। लेकिन फिर भी मुकम्मल तौर पे तो इसने कंट्रोल नहीं किया ना, मतलब कि जो कांस्टेंट लेवल था 100 mm ऑफ Hg, फिर भी उसको कांस्टेंट लेवल तक इसने कंट्रोल नहीं किया, एक मखसूस लेवल था, फिर भी 125 तक तो फिर भी इसने इंक्रीज किया, तो ये है इसका एरर। ठीक है, तो इस सिस्टम का जो गेन है वो है 2। ओके, अब जो है हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, ऐसे ही आप समझ लें कि एक बहुत दिलचस्प स्टोरी है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। इसकी डेफिनेशन ये है कि इट विल सपोर्ट द इफेक्ट ऑफ दैट स्टिमुलस। ओके, इट विल सपोर्ट the effect of that stimulus which causes the disturbance in body constant environment, internal environment। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, it will support the effect of that stimulus which cause the disturbance। मतलब कि पहले ही अगर ब्लड डिक्रीज हो रहा है तो ये उसको और सपोर्ट करेगा, या
और डिक्रीज हो। ठीक है, तो जिस तरह हम वो एग्जाम्पल देते हैं उर्दू में, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है, तो इसका भी हाल वैसा ही है। ठीक है, ये एक तो मजीद अगर ब्लड डिक्रीज हो रहा है तो ये कहता है मेरी तरफ से जाए भाड़ में और डिक्रीज हो जा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रोड एक्सीडेंट या किसी इंजरी की वजह से 2 लीटर ब्लड जो है हमारा बॉडी से ब्लीड हो जाता है, 2 लीटर ब्लड की जो है ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसके नतीजे में जो वेनस रिटर्न जाएगा हार्ट की तरफ वो कम होगा। उसके नतीजे में हार्ट जो है कम ब्लड को पंप करेगा और आर्टरीज में मजीद कम ब्लड जाएगा। और जब आर्टरी में मजीद कम ब्लड जाएगा तो जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट के मसल्स को ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं तो वो भी कम हो जाएगा। इस तरह बॉडी के जो हार्ट के जो मसल्स हैं वो वीक पड़ जाएंगे और हार्ट फर्दर जो है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। इस तरह जो है उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को कहते हैं कि ये विशियस साइकिल भी स्टार्ट कर देता है, विशियस साइकिल। ठीक है, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, इसका यही काम है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी यूजफुल हो सकता है किस कंडीशन में? देखें, अगर किसी वजह से हमारी किसी आर्टरी की जो है हेमरेज हो जाती है, ठीक है, किसी ब्लड वेसल की हेमरेज हो जाती है, तो यहाँ से होगी हेमरेज, तो अब इसका जो है ब्लड जो है वो हो रहा है लॉस। ठीक है, इस जब ब्लड लॉस होगा तो यहाँ पे आके एक ब्लड क्लॉट बनेगा और ये ब्लड क्लॉट जो बनेगा ये फर्दर जो है एक स्टिमुलेंट प्रोवाइड करेगा, इधर एक मजीद जो है बड़ा ब्लड क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, एक मजीद बड़ा ब्लड क्लॉट बन जाएगा और जो ब्लड है ये बाहर नहीं जाएगा, मतलब कि बाहर जाके ये ब्लड ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। इस तरह ब्लड का फ्लो भी रुक गया और जो क्लॉट था वो भी बड़ा क्लॉट बन गया ताकि ब्लड का जो है एक कतरा भी बाहर ना जा सके। ठीक है, तो इस तरह जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। इससे एक दूसरी एग्जांपल ये भी है, जब बेबी बर्थ ड्यूरिंग डिलीवरी जब बेबी का जो हेड है वो यूट्रस के ऊपर जब प्रेशर डालता है तो उसके नतीजे में सर्विकल जो कंट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। जब सर्विकल कंट्रैक्शन बढ़ती हैं तो ये स्टिमुलस जाता है ब्रेन की तरफ और ब्रेन से जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड के जरिए दोबारा उसी सर्विकल कंट्रैक्शन को मजीद इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो जैसी सर्विकल कंट्रैक्शन जो है मजीद इंक्रीज होती हैं तो इस तरह बेबी की ये डिलीवरी में भी ये हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और भी काम है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ना, ये दरअसल ओवरऑल काम नेगेटिव फीडबैक का ही कर रहा होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्चुअली वर्क फॉर द ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये किस तरह होता है इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, जब यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा था, ठीक है, हेमरेज की वजह से, तो हमारा काम तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उस जो ब्लड लॉस हो रहा था उसको कंट्रोल करना था ना, और अंदर से ब्लड क्लॉट बन रहा था। ठीक है, उस ब्लड क्लॉट बनते बनते बड़ा ब्लड क्लॉट बन गया। जब बड़ा ब्लड क्लॉट बना तो यहाँ से जो ब्लड का जो लॉस हो रहा था वो डिक्रीज हो गया और हम भी यही चाहते थे कि जो जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई है उसको ये अपोज करे। तो ओवरऑल ये उस डिस्टर्बेंस को अपोज कर रहा है ताकि जहाँ से ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाए और ब्लड जो है वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ही रोल प्ले कर रहा है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म दरअसल ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, अगर कोई एक स्टूडेंट्स के भी किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, या फर्ज करें मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ। आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ। जब मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ तो रात का टाइम था, तो मैंने एक गली से टर्न लिया और थोड़ा सा स्पीड से चलने लग गया। तो उस गली में एक जाम था, मुझे पता नहीं चला, और जैसे ही मैं जाम से गुजरने लगा तो स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मैं बाइक से गिर गया। ठीक है,
तो अल्लाह ना करे गिर जाऊँ, तो बाइक से गिर गया। तो अब ये जो है मेरे एक माइंड में क्या हो गया जी, मेरे माइंड में फील्ड हो गया कि इस रोड पे जब भी मैं आऊँगा यहाँ पे जंप होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वहाँ से उस रोड से गुजरूंगा तो मुझे पहले पता होगा कि इस जंप से मैं गिरा था, अब जो है मैं बाइक को जो है थोड़ा ऐसा जहाँ से ड्राइव करूँगा, ठीक है। तो सेम इस तरह इसको ये भी कहते हैं कि ये अडाप्टिव मैकेनिज्म है और ये डिलेड मैकेनिज्म है, ठीक है। दरअसल है ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, लेकिन ये डिलेड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, इसलिए हम इसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि अगर जब मैं पहली मरतबा बाइक ड्राइव कर रहा था तो उसी वक्त ही मेरे माइंड में वो स्टिमुलस जो है ब्रेन तक गया, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बाइक को जो है कंट्रोल कर सकूं, ठीक है। वो मेरे माइंड तक इतने जल्दी से प्रोसेस नहीं हो सका कि मैं उसको कंट्रोल कर सकूं और मैं इस जंप से जो है इजीली गुजर जाऊं, ठीक है। वो क्या नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे माइंड में फील्ड हो गया कि नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ से गुजरूंगा, यहाँ पे जो है जंप है, तो मैंने जो है यहाँ से ऐसा बाइक ड्राइव करनी है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डिलेड फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये सिंपल जो है कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी था। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस लेक्चर।